A very good morning to everyone. We have completed our six of the sessions of MS Word, and the sixth session, the last session that we completed, was about page break and section break. So, today we are starting with our next session, which is applying character formats. This session actually deals with some of the various formattings that we can apply on the characters. So this is one basic chapter that is explained to us. As you can see, they have given us a text, and they in this paragraph, in this text, you can see they have written some uh, words, some sentences in which you can find various ways like this: H2O, kilogram per meter cube, है ना. So in this way they have written some of the words जो कि थोड़े से टाइप किए हुए हैं, तो ऊपर को लिखे हुए हैं, कुछ नीचे को लिखे हुए हैं. ये 2O, ये नीचे को लिखा हुआ है. मीटर क्यूब, तो ये ऊपर को लिखा हुआ है ना. तो हाउ दीज टाइप ऑफ टेक्स्ट कैन बी रिटन. तो यहाँ पर जो बॉटम में ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं. और जो ऊपर की तरफ लिखा होता है, क्यूब में लिखा होता है जो, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं. कैसे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, सो दोज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन टू अस. नाउ यू कैन सी द सेम पैराग्राफ हैज़ बीन कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, and I think you can easily convert the same sentence to this form because they have done nothing. They have simply changed the font, make it as bold somewhere. Even they have highlighted some text, used some strike throughs, changed a different color, increased the font size and changed its font as well, changed it to italics, and written completely in bold capital letters. So these are the things that they have made changes in that paragraph, and what all options they have used for that will be known as the character formatting. So let us see what all character formattings are available to us. The first one is grow font. From the name itself it is clear, growing the font means increasing the font size. Shrink font means decreasing the font size. Strike through means if you are writing something and if there is a line in between on the text, so it will be called as a strike through. Next is subscript. As I told you, this is subscript. Next is superscript. So m cube. सो एम क्यूब इज़ अ सुपरस्क्रिप्ट, मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर जब टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट. ये देखो, ये यहाँ पर दिया हुआ है. और जब नीचे लिखा जाता है तो उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट. आगे बढ़ते हैं. वेर यू कैन फाइंड ऑल दीज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. सो दिस इज़ वेर यू विल फाइंड ऑल द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो, साइज़ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो. दीज आर ऑल्सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग्स. स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हो, सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो. और ये एक है, इसको अभी नीचे समझेंगे. और यहाँ पर बैकग्राउंड में टेक्स्ट के कलर डाल सकते हो और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो. ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. एक होता है सेंटेंस केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस, एक होता है कैपिटलाइज्ड वर्ड, एक होता है टॉगल केस. ये क्या होते हैं, अब इनको समझते हैं. ठीक है. यहाँ पर चेंज केस का जो ऑप्शन है, इसको चेंज केस बोलते हैं. ये जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो ऑप्शन है ए वाला, इसको चेंज केस का ऑप्शन कहा जाता है. इन दिस चेंज केस ऑप्शन यू सॉ वन वाज सेंटेंस केस. What is sentence case? So sentence case is generally how sentences are written. Means every word, whenever a full stop occurs, so the very first word that will be coming after the full stop will have its first character as capital. So that is the sentence case that is generally used everywhere. The next is lower case. If we select the lower case, लाइक एम एस वर्ड में कुछ टाइप किया हुआ है, आपने आपने पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज केस में गए और आपने लोअर केस पे क्लिक कर दिया. जैसे ही आप लोअर केस पे क्लिक करोगे, सारी की सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगी. अगर आपको सारी की सारी चीज़ों को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है
तो आप क्लिक करोगे अपर केस, आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, अपर केस पे क्लिक करो, एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन अपर केस सो एवरीथिंग विल बी चेंज टू कैपिटल लेटर्स। और कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब जैसे कि हर एक वर्ड को अगर आपको कैपिटल करना है, जैसे ऑन सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन, ऑन सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम, तो इनके सबके जो पहले पहले लेटर्स हैं वो सब कैपिटल करना है, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड नाम के ऑप्शन का यूज़ करोगे। और एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, जो चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी हुई है वो स्मॉल लेटर में चेंज हो जाएगी, जो चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई है वो कैपिटल्स में चेंज हो जाएगी, तो इसको बोला जाता है टॉगल केस। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो स्मॉल लेटर कैपिटल में और कैपिटल लेटर स्मॉल में चेंज हो जाता है। सो दिस इज एक्सरसाइज। In this exercise, you can find some of the fill in the blanks which are given. This is your task. ये आपको ढूंढना है और ये आपको नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेशन जो है वो इंसर्टिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस। अब ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर सिंपली हमको ये बताया गया है कि कैसे हम इमेजेस और क्लिप आर्ट्स ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने हमको वही सारी चीज़ें बताई हैं कि आप आपके डॉक्यूमेंट में कैसे कोई क्लिप आर्ट या कोई शेप या कोई पिक्चर या कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस कि कैसे हम क्लिप आर्ट ऐड करते हैं, कैसे अलग अलग शेप्स बनाते हैं, कैसे पिक्चर्स ऐड करते हैं, कैसे अलग अलग चार्ट्स क्रिएट करते हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर नोन टू अस। व्हाट इज क्लिप आर्ट? इफ एनी वन ऑफ यू डज नॉट नो व्हाट क्लिप आर्ट इज, सो देयर इज अ डेफिनेशन विच इज गिवन टू अस। Clip art can help in making a document look colorful and presentable. Clip arts are predefined images available for use in document. ये clip art की definition इन्होंने यहाँ पर दी है। If you have a limited number of clip arts and you want some more clip arts, so you can download from the websites which are given over here. यहाँ पर कुछ websites दी हुई हैं जिनका यूज़ करके हम clip arts डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने की क्या प्रोसीजर है तो वो भी दी हुई है। एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करो। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब में जाओ, रिबन में जो इंसर्ट टैब है उसमें जाओ। तो ये इंसर्ट टैब के अंदर आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप मिलेगा। तो ये इंसर्ट टैब में ये रहा इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो ये इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। वंस यू क्लिक ऑन क्लिप आर्ट, सो यू विल फाइंड दिस विंडो अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन। इस विंडो में आप जो भी क्लिप आर्ट सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और वॉट एवर मे बी द रिलेटेड क्लिप आर्ट्स यू विल सी दोज क्लिप आर्ट्स हियर ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्रीन पर आपको क्लिप आर्ट्स दिख जाएंगे। जैसे कि इन्होंने लोगो सर्च किया और गो पे क्लिक किया तो ये देखो ये कुछ क्लिप आर्ट्स हैं जो इनको सर्च में मिले। तो इस तरीके से हम क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट पे भी क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हैं। तो वो openclipart.org नाम की वेबसाइट का यूज़ करके इन्होंने बताया है कि वेबसाइट ओपन करो, स्कूल बैग का क्लिप आर्ट सर्च करना है तो स्कूल बैग लिख के सर्च कर दो, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्लिप आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको क्लिप आर्ट अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लो और वो फिर हम हमारे MS वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द सेशन यूजिंग विच यू saw how to you insert graphical images in your document. There are again some fill in the blanks which are given to us. Embedding a document, तो embedding का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, किसी चीज़ को जोड़ना मतलब embedding। इस fill in the blanks के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। कोई दो वेबसाइट जो फ्री क्लिप आर्ट्स ऑफर करती है, बहुत सारी हमने देखी। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन MS वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, ये एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमको डेफिनेशन उसकी मिल जाएगी। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर सेशन। लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेशन। आवर नेक्स्ट सेशन इज टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। वी हैव लर्न टू इंसर्ट ग्राफिक्स इन आवर प्रीवियस सेशन। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन इंसर्ट करना सीखा। ठीक है,
हाउ डू यू वॉन्ट द टेक्स्ट टू फिट टू द पिक्चर। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने एक पिक्चर ऐड करी है मेरे एक डॉक्यूमेंट में, मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर के बाजू में मुझे टेक्स्ट लिखने की जगह मिले। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता नहीं है। या मैं चाहता हूँ कि इमेज के लेफ्ट साइड में मुझे डॉक्यूमेंट लिखने कुछ डॉक्यूमेंट को टाइप करने की जगह मिले। या तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे यहाँ मुझे जगह मिले। या तो मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के यहाँ से चालू हो यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से चालू हो यहाँ तक जाए, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट लिख सकूँ। तो इस तरीके से टेक्स्ट जनरली आता नहीं है। जनरली जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो ऐसा आता है कि एक इमेज इंसर्ट होती है, उस इमेज के नीचे आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हो। दिस इज द बेसिक फॉर्म यूजिंग विच जनरली टेक्स्ट इज रिटन ऑन जस्ट बिलो द इमेज। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम हमारे हिसाब से जैसा टेक्स्ट जहाँ लिखना चाहें इमेज के आसपास वहाँ लिख सकते हैं। और इस तरीके से टेक्स्ट को लिखने का जो एक ऑप्शन हमको दिया हुआ है उस ऑप्शन को बोला जाता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को रैप करना, रैप करना मतलब कि फोल्ड करना या कहीं भी स्टोर करके रखना है ना। तो टेक्स्ट की रैपिंग करना, तो टेक्स्ट की रैपिंग कहाँ पे करेंगे हम, तो इमेज के साथ करेंगे। इमेज के साथ हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। व्हाट ऑल ऑप्शंस आर गिवन टू अस फॉर व्हाट वी कैन से रैपिंग द टेक्स्ट। सो देखो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये एक मेरे पास पिक्चर है, ठीक है, सॉरी, ये एक पिक्चर है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक मेरी इमेज है, ठीक है। ये पूरी की पूरी इमेज को मुझे एम एस वर्ड में इंसर्ट करना है। तो ये देखो इन्होंने इस इमेज को एम एस वर्ड में इंसर्ट कर लिया। ये रहा एम एस वर्ड पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एम एस वर्ड का विंडो है। इस एम एस वर्ड में उन्होंने ये पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अगर नॉर्मली ये पिक्चर इंसर्ट की होती तो इस इमेज के बाजू में आप ऐसा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट नहीं लिख सकते थे, पर यहाँ पर ये लिख पा रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज़ किया है और टेक्स्ट रैप में से सिलेक्ट किया इन लाइन विथ टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप क्या कहते हैं कि इमेज इंसर्ट करते हो, तो इमेज इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट कहाँ पर रैप करना है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो मतलब क्या होगा कि जहाँ से इमेज इंसर्ट है वहीं पर टेक्स्ट भी इन लाइन उसके साथ दिखने लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, तो स्क्वायर में एक इमेज इंसर्ट हो जाती है, उसके आजू बाजू हर तरफ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टाइट, टाइट का मतलब होता है इमेज के ऊपर ही टेक्स्ट आने लगेगा। तो मतलब कि बहुत कम स्पेस आपको दिखेगी और ज़्यादातर टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखेगा। और थ्रू मतलब कि इमेज पीछे हो जाएगी, टेक्स्ट सामने दिखेगा। टॉप एंड बॉटम मतलब कि टॉप में टेक्स्ट बॉटम में टेक्स्ट आप लिख सकते हो। और बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब आपको इमेज को पीछे करना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर दो, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो इमेज आगे आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे चले जाएगा। तो ऐसे कुछ रैपिंग ऑप्शंस हैं। हमको बस ये पता रहना चाहिए कि रैपिंग की जा सकती है। कोई इमेज को इंसर्ट करने के बाद हम ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये एक इमेज इंसर्ट कर दी, ये मेरा एम एस वर्ड का विंडो है, अब मैं ये जगह खाली जाएगी ये जगह खाली जाएगी और यहीं पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, यहाँ पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इवन इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो दैट इज़ पॉसिबल। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो उसके लिए आपको ये टेक्स्ट रैप का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। टेक्स्ट रैप का ऑप्शन का यूज़ करके हम टेक्स्ट को कहीं भी इमेज के जहाँ भी लिखना चाहे वहाँ पर लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर था टेक्स्ट रैपिंग का। अगेन देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स विच आर गिवन टू यू, ये आपको देखना है और इनके आंसर्स नोट डाउन करके लिखना है। और नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट एनी 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शंस। तो स्क्वायर, टाइट, थ्रू, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये जो ऑप्शंस हमने देखे ना ये इसका आंसर आएगा। ये यहाँ पर ये जितने दिख रहे हैं ये सारे उसके आंसर्स में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेशन है वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स। अब हम ऑब्जेक्ट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, चलो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। इन एडिशन टू ग्राफिक इमेजेस, सॉरी,
To add personal touch to a special message or to illustrate a special feature, you may want to embed sound or even actual files from other software applications in your document. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमेज और इमेज के साथ आप कह सकते हो क्लिप आर्ट, शेप और चार्ट, यही सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है. You can even insert any other type of file on MS Word. मतलब कि MS Word में आप एक्सेल की फाइल भी डाल सकते हो, MS Word में आप प्रेजेंटेशन की फाइल भी डाल सकते हो, MS Excel में आप PDF फाइल भी अलग से डाल सकते हो. ठीक है, कि आप MS Word खोलोगे पर उसी में हम क्या कर देंगे, उस PDF फाइल को इंसर्ट कर देंगे. तो वो PDF फाइल क्या हो गई, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया जो हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कहलाई, मतलब कोई थर्ड पार्टी हम कोई फाइल यहाँ पर MS वर्ड में ऐड कर रहे हैं, तो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो देखते हैं. ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, इंसर्ट टैब में जाना है और क्लिक अंडर द टेक्स्ट सेक्शन, है ना. यहाँ पर टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट नाम के ऑप्शन को, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ कहीं पर हो तो आपको दिखा पाऊँ, आई थिंक कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, बट वो सर्च करना पड़ेगा. ये इंसर्ट टैब है. ये रहा, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन है. ठीक है, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. जैसे ही आप उसमें जाओगे आपको इस तरीके का विंडो देखने को मिलेगा. नाउ अंडर दिस विंडो यू कैन सिलेक्ट कि आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है या आपके पास कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है. अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो क्या है वो न्यू फाइल, एक्रोबेट रीडर की फाइल है, मतलब PDF फाइल है, इमेज है, इक्वेशन की फाइल है, वर्कशीट की एक्सेल की फाइल है, चार्ट है, क्या है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर आप लोगों के पास आपकी खुद की कोई फाइल है तो आप लोग क्रिएट फ्रॉम फाइल में जाकर डायरेक्टली वो फाइल को इंसर्ट कर सकते हो. और जैसे ही आप उसको ब्राउज़ करोगे और इंसर्ट कर दोगे तो वो फाइल आपके MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी. ठीक है, इसकी खास बातें क्या है वो देख लेते हैं. द एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी प्रिंटेड, मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को सेंड कर रहे हो तो उसको वो PDF, या आपने अगर कोई वर्ड फाइल में PDF लगाई है तो वो सामने वाले को दिख जाएगी. बट वो अगर चाहे कि मैं पूरे ये डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले लूँ तो वो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने में जो आपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट का प्रिंट आउट वहाँ पर नहीं लिया जा सकता. ठीक है, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी प्रिंटेड, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स प्रिंट नहीं किए जा सकते. द पर्सन ओपनिंग योर डॉक्यूमेंट मस्ट हैव रेलेवेंट सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन देयर कंप्यूटर टू ऑपरेट एम्बेडेड फाइल. मैंने PDF फाइल इंसर्ट कर दी, मतलब कि ऑब्जेक्ट कौन सा इंसर्ट किया, PDF फाइल. अब PDF फाइल आए इंसर्टेड इन MS वर्ड, तो सामने वाले के पास एक्रोबेट रीडर या एडोब रीडर सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना PDF फाइल ओपन होने वाला. अगर सामने वाले के पास कोई रिलेवेंट सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये फाइल ओपन नहीं हो सकती. ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात बताइए, इफ़ यू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट द साइज ऑफ योर डॉक्यूमेंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली एंड दिस में कॉज प्रॉब्लम्स इन मेलिंग द डॉक्यूमेंट एज एन अटैचमेंट. मैंने जैसे कि एक डॉक्यूमेंट बना रहा था, उसमें PDF अटैच कर दी, 100 पेज की PDF. वो 100 पेज की PDF 50 MB से ज़्यादा की हो गई. तो मेरे डॉक्यूमेंट का खुद का कुछ साइज़ था 1 MB का, और उसमें 50 MB की मैंने एक PDF अपलोड कर दी, तो टोटल 51 MB का साइज़ हो गया. और मेल करते समय 25 MB से ज़्यादा बड़ा साइज़ अलॉटेड हमारे पास नहीं होता है, तो अब मैं मेल करने में भी प्रॉब्लम्स फेस करूँगा. तो इनका कहना यह है कि जब कभी आप ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हो तो साइज़ ऑफ द फाइल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, है ना, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है साइज़ में फाइल के, जिससे कि मेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, अब जो हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिंक कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जैसे मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है, वो मैंने लिंक कर दी, सामने वाले को भेजी, तो सामने वाले के डेस्कटॉप पे भी या सामने वाले के कंप्यूटर पे भी उसी पाथ पे वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर एग्जिस्ट करती है देन ओनली ही विल बी एबल टू
ओपन दैट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज ही वोंट बी एबल टू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते समय ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पर अगेन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यू कैन गो थ्रू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, और आंसर्स आप लोगों को ही ढूंढना है और लिखना है। नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 11, जो कि बता रहा है कि आप कैसे शेप्स इंसर्ट कर सकते हो, सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हो। तो आपको जब कभी आपके डॉक्यूमेंट में शेप्स इंसर्ट करना है, तो शेप्स इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और भी अगर आप कोई चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है कि आप लोगों को सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, तो सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए भी यहाँ पर देखो ये सिंबल्स का ऑप्शन लिखा हुआ है। इक्वेशन कुछ इंसर्ट करनी है तो इक्वेशन का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें इंसर्ट की जा सकती हैं। जैसे कि यू कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डिफरेंट शेप सच एज लाइन, ज्योमेट्रिक शेप, एरो, इक्वेशन, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर्स, कॉल आउट्स यूजिंग द शेप ऑप्शन। शेप ऑप्शंस में जाकर आप जो चीज़ें हमने ऊपर देखी वो सारे के सारे शेप्स आप शेप ऑप्शन में जाकर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे इंसर्ट करेंगे? तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद सिंबल्स ग्रुप में जाओ, सिंबल्स ग्रुप में सिंबल का ऑप्शन होगा, सिंबल के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो। या तो सिंबल्स के ऑप्शन में नहीं जाना है, आपको शेप इंसर्ट करना है, तो आप लोग इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप्स में जाने के बाद शेप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शेप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होकर दिखेगा जिसमें बहुत सारे शेप्स होंगे, उसमें से आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो। सेम गोज फॉर द सिंबल्स, तो आपको अलग अलग सिंबल्स, ये देखो ऐसे सिंबल्स दिख जाएंगे और आप कोई भी सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। अगेन इन्होंने बोला है कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बताओ। तो कुछ नहीं है, सिंबल्स में शेप्स में जाओगे तो ये सारे के सारे शेप्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपको बस वो शेप को इंसर्ट करना है। एरोज भी वहाँ पर होते हैं, इन्हीं तरीके के एरोज भी हम वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ा एडवांस लेवल की चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगेन वी आर प्रोवाइडेड विद सम ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपको खुद को करना है। ऑल राइट, सो ओके, सो वी आर डन विथ अवर यूनिट नंबर 3। दीज वेर ऑल द सेशंस दैट आर गिवन टू अस। छोटे छोटे सेशंस थे, इसीलिए एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया उनको, कोई बड़े लेंदी सेशंस नहीं थे वो। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। कुछ डाउट हो तो आप लोग एक बार इसको देखें और मुझसे पूछें। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।